So we'll do solutions of linear equation today. Solution of a linear equations basically the values which satisfy the values of x and y which satisfies an equation is called the solution of a linear equation. Okay. For example, 2x plus 3y is equal to मान लो 8 है 2x plus 3y is equal to 8 है तो x is equal to 1 and y is equal to 2 satisfies this equation. मतलब कि अगर आप वैल्यूज डालेंगे यहाँ x के जगह 1 डालेंगे और y के जगह 2 तो 2 into 1 2 होता है 3 into 2 6 होता है ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को ये जो गिवन इक्वेशन है तो x is equal to 1 and y is equal to 2 is basically the solution one of the solution of this linear equation. So इसमें क्या एक ही सॉल्यूशन होगा लेट अस चेक हम लोग अगर x का वैल्यू ठीक है अलग अलग वैल्यूज के लिए हम लोग देख सकते हैं 2x plus 3y is equal to 8 है अगर y का वैल्यू अब अगर हम लोग 0 डालते हैं और x का 4 डालो so x is equal to 4 and y is equal to 0 ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको 2 4 8 and 3 0 0 तो 8 plus 0 8 होता है तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा so there will be many such solutions infinitely many such solutions possible for this linear equation in two variable. तो एक linear equation in two variable का को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलता है और इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे there are infinite number of points which lie on this straight line and each of these points will satisfy the linear equation in two variables. So if you represent graphically this linear equation in two variable you will get a straight line every point on this straight line which is lying on this straight line satisfies this equation okay is Yes, it sir. Yes, sir. there are infinite solutions possible for a linear equation so infinite values of x and y can satisfy a linear equation and there are infinite solutions possible for a linear equation. So you can write it in fact. A linear equation in two variable so a linear equation in two variables has infinitely many solutions. Has infinitely
many solutions. Clear? Yes, sir. सबने लिख लिया सारा? Yes, sir. So 1 minute. Yes, sir, done. Now, if you see this example 3, find 4 different solutions of the equation x plus 2y is equal to 6. x plus 2y is equal to 6. इसके 4 solutions हम लोगों को ढूंढने हैं. तो इसको ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टेबल बना के करते हैं. इनफैक्ट ग्राफ वाले में भी टेबल बनाएंगे और इधर भी टेबल बनाएंगे. तो 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. हम लोग x और y का वैल्यू लिखेंगे जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. ट्रायल एंड एरर मेथड होता है. बेसिकली तुम पहले क्या करो, सबसे आसान होता है कि x को 0 कर दो. x को 0 करोगे तो 2y is equal to 6 है, उसको सॉल्व करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. तो अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Did you get it? Yes, sir. The value of x is equal to 0. Solve this 2y is equal to 6. You will get y is equal to 3. मतलब x is equal to 0 and y is equal to 3 satisfies this equation. अब देखो यहाँ पे ये अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो 6 minus x by 2 मतलब जो भी x का वैल्यू आएगा ना वो इवन होना चाहिए जिससे कि 2 से डिविजिबल होता है. 0 के बाद x का वैल्यू 2 रख दो. अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इधर जाएगा तो 6 minus 2 4 हो गया. 4 by 2 ये y का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया. तो 2 और 2 सेटिस्फाई कर रहा है. See, when x is equal to 3, sorry x is equal to 2, तो यहाँ पे अगर पुट कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 plus 2y is equal to 6, 2y is equal to 4, and this will give you y is equal to 2. इसीलिए x के वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा. 2 plus 2 into 2 6 होता है. अब x का वैल्यू 4 ले लो. x का वैल्यू 4 ले लेंगे, y का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा. यहाँ पे फिर से आप सॉल्व करके देख सकते हो. x का वैल्यू 4 रखोगे, 4 plus 2y is equal to 6, तो y is equal to 6 minus 4 by 2, so this is 1. वही y का वैल्यू 1 है. राइट. अब x का वैल्यू नेगेटिव में -2 अगर रख दो, राइट, x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 8 by 2 4 आ जाए. So these are the 4 different values of x and y which satisfies this equation. Is it clear to everyone? Yes, sir. तो ट्रायल एंड एरर मेथड है. तो ये this is, you know, these are the solutions. Basically 0,3 satisfies this, 2,2 satisfies this, 4,1 satisfies this, and -2,4 satisfies this equation. So जो solution set होगा एक हो जाएगा 0,3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, 2,2, 4,1 और -2,4. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सभी ने, मिटाए इसको? Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir.
जल्दी लिखो। Example 4. Find two solutions for each of the following equations. हमारा पहला इक्वेशन है 4x plus 3y is equal to 12. 4x plus 3y is equal to 12. ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो इसके दो सॉल्यूशंस निकालने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पहले वाले का अगर हम निकालेंगे तो दो सॉल्यूशंस निकालने इसका टेबल बना लेते हैं। x y, सबसे आसान तरीका मैंने बोला था x को 0 रख लो। x को 0 रख के सॉल्व करोगे तो y क्या आ जाएगा 12/3 4 हो जाएगा। और y को अगर 0 कर लेंगे, y को अगर 0 कर लोगे तो x का वैल्यू 12/4 3 हो जाएगा। तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए 0,4 और 3,0। इसके सॉल्यूशंस क्या हो गए 0,4 एंड 3,0। तो x 0 पे y 4 इसका सॉल्यूशन है। x is equal to 3 and y is equal to 0 इसका दूसरा सॉल्यूशन। क्लियर है सभी को ना? देखो Yes, sir. इसका वैल्यू इसमें 0 डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 into 0 plus 3y is equal to 12। 4 into 0 0 होता है तो 3y is equal to 12 हो जाएगा। y is equal to 12/3 सॉल्व करोगे 4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 4 आ गया। तो मतलब x is equal to 0 and y is equal to 4 पहला सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y को 0 कर लेते हैं। तो 4x plus 3 into 0 is equal to 12। 4x is equal to 12, x is equal to 12/4 which is equal to 3। तो दूसरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x is equal to 3 and y is equal to 0। ये दूसरा सॉल्यूशन। So these are the two solutions which is satisfying this linear equation in 2D। क्लियर है सबको? Yes, sir. दक्ष आ रहा है समझ में तुम्हें? आ रहा है? सो रहे हो क्या? आवाज ही नहीं आई तुम्हारी। Yes, yes, sir. अच्छा लिख लिया सभी ने? Yes, sir. विवान सेकंड वाला है 2x plus 5y is equal to 0। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है x और y का वैल्यू, राइट? कौन बताएगा मुझे? Sir, if we put x as 0, so y will also be 0. तो 0,0 पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? Can anyone tell me the second solution? Come on. आलिया, अतुल्य, दक्ष, कुशाग्र, कोई नहीं बता पा रहा है? So we can take x as 1 and y as so I guess minus 2/5. Yeah, but then we should try and get the integral values। कोई इंटीजर में बता सकते हो क्या?
देखो x का वैल्यू अगर 5 लोगे तो ये 10 हो गया। देखो 5 से डिविजिबल होगा तभी ना जब 5 से मल्टीपल होगा। तो x का वैल्यू 5 ले लो, उधर जाके -10/5 करेंगे तो -2 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -2 सेटिस्फाई कर, है ना। Yes, sir. इंटीजर वैल्यू लेंगे तो तभी तो हम लोग ग्राफ में प्लॉट कर पाएंगे ना। आगे आगे हम लोग को ग्राफ भी बनाना है, तो इसीलिए कोशिश करो कि इंटीग्रल वैल्यूज ले, फ्रैक्शनल वैल्यूज ना लेके x और y का इंटीग्रल वैल्यूज ले। So that is also correct what you said, but then I wanted integral values. So -5 और 2. अब तो सबको आएगा -5 और 2, पहले बताना था। चलिए फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड वाला देखें। अगर थर्ड वाला वैल्यू है 3y + 4 = 0। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो x का कोई टर्म ही नहीं है। तो x का कोई टर्म नहीं होने का मतलब y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, यहाँ पे -4/3। x का चाहे कोई भी वैल्यू, x 0 डालोगे तो भी y का वैल्यू -4/3, x 1 डालोगे तो भी y का वैल्यू -4/3 एंड सो ऑन। आ रहा समझ में? Yes, sir. So but ये तो इंटीजर नहीं है, इसको कैसे प्लॉट करेंगे? नहीं कर सकते ना यहाँ पे y का वैल्यू -4/3 है, तो इंटीजर कैसे देंगे? तो सर ऐसे क्वेश्चन प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ? आप क्यों नहीं कर सकते, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना। हमारे पास एक स्क्वायर जो होता है वो 10 डिविजन्स में रहता है, तो हम लोग 4/3 मतलब कि दिस इज इक्वल टू -1/3। तो बेसिकली जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, इसके बीच में 10 डिविजन्स होते हैं, 1 2 थर्ड वाला हम लोग ले लेंगे। सॉरी, ये -1 हो गया और ये यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से 10 डिविजन्स हैं। तो हम लोग जो 1/3 कह रहे हैं, तो अगर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके 1/3 वाला पार्ट ले लें तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे। जब ग्राफ में आएगा ना तब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, डोंट वरी, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली ऐसे करके निकाल लेंगे। Now we'll do exercise 4.2. Which of the following options is true and why? पहला वाला बोल रहा है y = 3x + 5। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। So there will be infinitely many solutions possible. Second कह रहा है write 4 solutions for each of the following equation. First वाला है 2x + y = 7। इसके चारों सॉल्यूशंस 4 बच्चे अलग अलग बताएंगे मुझे, इसीलिए पहले से देखना शुरू कर दो सॉल्यूशंस x और y। कौन बताएगा पहला? पहला तो बहुत आसानी से निकल जाता है, कौन बताएगा? 0,7. देखो ये देखो होशियार बच्चा ने पहले चूज कर लिया इजी वाला। x का वैल्यू 0 रखेंगे
x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ गया 7 आ गया। दूसरा वाला कौन बताएगा? 3,1 x का वैल्यू अगर 3 कर देंगे तो 3 + 6 7 - 6 y का वैल्यू 1 हो गया। तीसरा कौन बताएगा? So 2,3. 2,3 हाँ ये भी होगा। x का वैल्यू 2 कर लेंगे 4 और ये 3 हो गया। और चौथा 1,6. बहुत बढ़िया 1 रखेंगे तो 2 1 are 2 7 - 1,5 हुआ बेटा, है ना? Yes, sir. 5। चलिए तो मतलब हमारे सॉल्यूशंस क्या क्या हो गए? 0,7 3,1 2,3 और 1,5, है ना? अब तुम लोग को आ गया। सेकंड का जो सेकंड पार्ट है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं आएगा क्योंकि पाई है ना, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रल पर बाकी में नहीं आएगा। 4 सॉल्यूशंस निकालने हम लोग को x और y। x का वैल्यू 0 करने पे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 9। उसके बाद x इज इक्वल टू अगर 1 करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 - 5। x का वैल्यू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 2 पाई। x का वैल्यू 3 करने पे 9 - 3 पाई। क्लियर है? Can we take 7/22 by 8? 7 माइनस तो Sir, 7/22. you find that easy? So what? You find that easy? You have to write it in terms of pi only. Why do you want to put the value of pi? 7/22/7 is not the right value of pi. It's not the exact value. That's a something which we have assumed. Pi is an irrational number. 22/7 rational number है, तो वो उसका exact value नहीं होता है 22/7। Yes, sir. ये pi के terms में ही लिखेंगे। थर्ड हो गया x is equal to 4y है। अब ये भी सिंपल है ना? यहाँ पे तो x का वैल्यू डालते जाओ y का वैल्यू निकलता जाएगा, या y का वैल्यू डालते जाओ y का वैल्यू 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखोगे तो x 4 हो जाएगा, y 2 पे x 8 हो जाएगा, y 3 पे x 12 हो जाएगा। राइट? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Third question is, check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not. इक्वेशन है x minus 2y is equal to 4। पहला वाला है 0,2। 0,2 डालेंगे तो LHS हमारा क्या हो जाएगा 0 minus 2 into 2 minus 4, which is not equal to RHS, तो ये solution नहीं है। So this is not a solution. Clear है? Yes, sir. सेकेंड वाला हमें करना है 2,0। यहाँ पे LHS चूज करेंगे 2 minus 2 into 2, sorry 2 minus 2 into 0, so this is equal to 2, so
and RHS is 4. So this is not equal to RHS again. तो फिर से not a solution हो जाएगा. So this is not a solution. Third part में that is 4,0. मेरे पास इक्वेशन है x minus 2y is equal to 4. तो वैल्यूज पुट करेंगे 4 minus 2 into 0 LHS. This is equal to 4. That is equal to RHS. This is 4,0 is a solution. Satisfy कर रहा है इक्वेशन को, इसीलिए ये एक सॉल्यूशन है. फोर्थ पार्ट है √2, 4√2. So LHS is equal to x minus 2y √2 minus 8√2 minus 7√2. This is not equal to RHS. This implies this is not a solution. Fifth part, वन कॉमा वन कह रहे हैं तो हमारा LHS इक्वल टू इक्वेशन है x minus 2y is equal to 4. 1 minus 2 into 1 is minus 2. This is sorry 1 minus 2 is equal to minus 1, which is not equal to RHS. So that means this is not a solution. Fourth, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is the solution of the equation. Equation है हमारा 2x plus 3y is equal to k. So हमारा value है x is equal to 2 and y is equal to 1. So this is the solution. अगर ये solution है तो इसको satisfy करेगा. Values put कर दो x का 2 और y का 1 और इससे हम लोग k का वैल्यू निकाल लेंगे सॉल्व करके. तो ये क्या हो गया 4 plus 3 is equal to k और 7 is equal to k. तो वैल्यू ऑफ k कितना हो गया 7. तो हमें इक्वेशन दे रखा था और ये दे रखा था कि दिस इज द सॉल्यूशन x is equal to 2, y is equal to 1. We had to find the value of k. So we put the value of x and y as 2 and 1 and solved it.
to find the value of k equal to 7. Is this clear to everyone? Yes, sir. ग्राफ पेपर निकाल लो तुम लोग. Please take out graph paper, pencil, rubber, these things. हो गया बच्चों? Yes, sir. Now we'll do graph of linear equation. So do we have to write this in notebook? Write this in notebook, and then when I ask you to draw a graph, then you will be using that graph. So graph of a linear equation in two variables. Example 5, given the points 1, 2, find an equation of line on which it lies. How many such equation is there? तो हमें पॉइंट दे रखा है 1, 2, हमें निकालना है वो इक्वेशन जो कि ये वाला पॉइंट जिसको सेटिस्फाई करता है. तो अब देखो, अगर हम लोग 2x minus y is equal to 0 करें, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x का वैल्यू 1 डालोगे 2 minus 2 is equal to 0, सेटिस्फाइड, राइट. उसके अलावा तुम ये भी कर सकते हो x plus y is equal to 3, ठीक है. ये भी एक इक्वेशन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 डालोगे तो भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है. उसके अलावा 2x plus y is equal to 4, इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है. So there can be infinite such equations which can be satisfied by this point. मतलब there can be infinite number of lines on which this point 1, 2 lies. मतलब एक पॉइंट अगर यहाँ पे 1, 2 है तो इससे क्रॉस करता हुआ you can have infinite number of lines which can pass through this. है ना? So there can be infinite number of lines passing through this point. And each of these lines, ये जो सारे lines हैं L1, L2, L3, L4 और L5, ये सारे lines जो हैं किसी ना किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये क्लियर सबने? Yes, sir, written.
Example 6. Draw the graph of x plus y is equal to 7. x plus y is equal to 7 का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले तो इसका टेबल बनाते हैं। कोई भी ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट मिनिमम शो करना पड़ता है ना? We have to take 3 points which are lying on this line. x और y का टेबल बना लेंगे और 3 पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन बताएगा मुझे? पहला पॉइंट, पहला तो सिंपल है 6 and 1. दूसरा क्या है 7,0 और तीसरा 4 and 3. है ना 4,3 3,4 कोई भी ले लो। अब इसके बाद तुम अपने ग्राफ पेपर पे क्या करो? ग्राफ पेपर पे हाफ ऑफ द ग्राफ पेपर में ये इस तरह से पॉइंट्स बना लो। मतलब एक ग्राफ पेपर को 2 पार्ट कर लो, 2 क्वेश्चन बन जाएगा एक ग्राफ पेपर। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ये पॉइंट हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये पॉइंट क्या होता है 0,0 होता है। अब हम लोग को प्लॉट किसको करना है? कौन कौन से पॉइंट्स को? 0,7 को, 7,0 को और 3,4 को। तो यहाँ पे देखो तुम प्लॉट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा, ये पॉइंट 0 हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर भी करेंगे -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6। अब हमें पॉइंट्स क्या क्या लेने हैं? 0,7 ये पॉइंट हो गया, 3,4 ये पॉइंट हो गया और 7,0 ये पॉइंट हो गया। इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये बेसिकली हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है। सो दिस स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स x plus y is equal to 7। प्लीज अपने ग्राफ पेपर पे बनाइए इसको, फटाफट बनाइए और शो कीजिए मुझे। क्वेश्चन कह रहा है you know that the force applied on a body is directly proportional to the acceleration produced in the body. Write an equation to express the situation and plot the graph of the equation. So force is directly proportional to acceleration or force is equal to constant m into a mass into acceleration. ठीक है? अब इसका ग्राफ बनाना है हम लोगों को, है ना? तो कोई भी चीज ले लो भाई, F is equal to ma। तो फोर्स को हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स हो जाएगा, जहां m कांस्टेंट है, राइट, और x है। अब m का कोई भी वैल्यू ले लो, लेट m इज इक्वल टू 2। तो उसमें इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x। तुम इसको प्लॉट करके दिखा दो, ठीक है? x y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 तो y का 2, x2 y4। अब इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 1 2 3। x का वैल्यू 0 पे y 0 है, x1 पे y का वैल्यू 2 है, x2 पे y का वैल्यू 4 है। आई एम सॉरी, मेरा डायग्राम इस टेबल के अंदर चला गया है, तुम लोग अलग बनाना टेबल, ठीक है? तो ये ग्राफ हो गया उसका। तो
हम लोग यहाँ मास को 2 kg ले रहे हैं तब ये हो रहा है, कुछ भी ले सकते हो, 3 kg लोगे कुछ अलग बनेगा, 4 kg पे कुछ और बनेगा ऐसे, ठीक है। Yes, sir. इसको बना लो एंड देन छुट्टी आज के लिए, तो आप प्लीज इसको कर लीजिए एंड देन यू कैन लीव।